Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is vicarious liability, which is somewhat related to absolute liability. They both are concepts under tort law which describes who will be the liable for a particular offense. In the course of today's video, we will be sticking to the vicarious liability. We will understand the meaning of vicarious liability, as well as we will be also looking at the certain case laws of vicarious liability and how a vicarious liability can be established. Without further ado, let's look into the PPT. So now we have jumped into the PPT of vicarious liability. This particular PPT has been divided into 4 parts. In the first part, we will talk about the introduction. In the second part, we will be looking at the meaning of vicarious liability. In the third part, we will be looking at the types of vicarious liability as well as essentials of it and exceptions of it. In the fourth part, we will be looking at certain case laws. First part, introduction. Whenever a person commits an act which is unlawful, that person is held liable for violating the law and thus he is punished accordingly. For example, A enters into the property of B without his permission. Such an act of A amounts to trespass and thus he is liable. यहाँ पे ये बोला गया है that कोई भी बंदा अगर एक गलत काम करता है which is violative of law, तो उस बंदे को हम पनिश करेंगे अकॉर्डिंगली. अगर वो सिविल ऑफेंस है तो उसके ऊपर सिविल केस चलेगा, अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलेगा. This is the general rule of the torts, but in some situations a person can be made liable even if he has not done anything wrong, if it is done by some other person with whom he shares a certain relation, such as master and servant or a principal and agent, and in these cases his liability is called vicarious liability. यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपने कुछ गलत काम भी नहीं किया है, बट जिस बंदे ने गलत काम किया है उसका और आपका एक मास्टर सर्वेंट या तो फिर एक प्रिंसिपल एजेंट जैसा कोई रिलेशनशिप है, तो आपके ऊपर एक वाइकेरियस लायबिलिटी लग सकती है. इवन तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है, आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है. Vicarious liability means that the liability of person for an act committed by another person, and such liability arises due to the nature of the relation between the two. For example, A is a driver and who works for B. While driving B's car for taking to him to his office, he hits C, a pedestrian, due to his negligence in driving. In such cases, even though B was not driving this car, he will still be liable for the accident which was caused due to the negligence of A. यहाँ पे क्या बोला गया है that एक ड्राइवर है जो B के लिए काम करता है. B को उसके घर से ऑफिस तक लेते जाते समय A ने एक C को ठोकर मार दी ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस. यहाँ पे अल्टीमेटली B वॉज नॉट सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट, वो गाड़ी नहीं चला रहा था, बट क्योंकि A B के लिए काम कर रहा था एज अ ड्राइवर, तो A की जो कोई भी गलती है उसका लायबल रहेगा B. अल्टीमेटली यहाँ पे एक वाइकेरियस लायबिलिटी का एक एग्जाम्पल एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि जिसमें सिंपली बोला है दैट मास्टर विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ देयर सर्वेंट. उसके बाद आ जाते हैं मीनिंग के ऊपर. मीनिंग ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी. Under Indian law, vicarious liability in tort refers to the situation in which an employer is held responsible for the tortious act committed by his or her employees. The term tort refers to any civil wrong that causes harm or injury to another person, and the term vicarious liability refers to the legal responsibility that an employer has for the actions of his or her employees. For example, if an employee of a company causes injury to someone while performing his or her duties, the company may be held liable for the employee's actions. Even if the company did not directly cause the harm, the reason for this is that the employee was acting within the scope of his or her employment. The company has a legal obligation to ensure that the employee act in a responsible manner. यहाँ पे भी यही बोला है कि कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग जिसकी वजह से किसी और को डैमेज होता है, ठीक है, भले ही वो काम एक्चुअल में किसी बंदे ने नहीं किया है, बट जिस भी इंसान ने ये चीज़ की है उसके साथ उसका मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है, या तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है,
तो अल्टीमेटली मास्टर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ देयर सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज और एजेंट्स। यहाँ पे दो व्यू की बात की है। सबसे पहले हम देखेंगे ओल्ड व्यू। अकॉर्डिंग टू ओल्ड डॉक्ट्राइन, द लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट्स कमिटेड by another is based mainly on the following two maxims. First is quae facit per alium facit per se. This means that a person who does an act through another is deemed in law to do it himself. A master is liable for the torts of his servant on the basis of this doctrine. A person who gets his work done through another is liable for all the consequences from that act. यहाँ पे ये बोला गया है, इट इज़ एन ओल्ड व्यू, कि सपोजिवली आप किसी भी एक बंदे को अपना काम करने के लिए देते हो। जैसे कि एक एडवोकेट ने उनके जूनियर को एक फ़ाइल ड्राफ्ट करने के लिए दी। उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट के अंदर जूनियर से 3-4 जगह पे पंक्चुएशन एरर्स और काफ़ी जगह पे एपेलेंट का नाम गलत लिख दिया गया। अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट वॉज सेंट फॉर फाइलिंग बिफोर द हाई कोर्ट एंड यहाँ पे गलत फाइलिंग की वजह से एडवोकेट का नाम खराब हुआ। अभी वो पर्टिकुलर एडवोकेट अपने जूनियर को ऐसा नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज तुमने ऐसी गलती की, उस वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। यहाँ पे सिनारियो ऐसा बनता है दैट जूनियर का कोई भी काम होता है दैट शुड बी लुक्ड एंड थरली चेक्ड बाय देयर सीनियर्स। तो ये एक मैनेजमेंट फ्लॉ की वजह से एडवोकेट का नाम थोड़ा ख़राब हुआ। तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है क्वेर फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, कि यहाँ पे यही बोला गया अगर मैं किसी मेरे सर्वेंट से या मेरे जूनियर से काम करवाता हूँ तो उसका मतलब यही है कि वो काम मैंने खुद किया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिस्पोंडेंट सुपीरियर। दिस मैक्सिम मीन्स दैट द सुपीरियर मस्ट बी लायबल। द मास्टर इज लायबल फॉर ऑल सच एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट विच ही डज इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज द मास्टर इज केपेबल ऑफ द मीटिंग लायबिलिटी। रेस्पोंडेंट सुपीरियर का बेसिक मतलब होता है लेट द मास्टर स्पीक, कि जब भी किसी सर्वेंट की गलती की वजह से किसी और को कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है, मास्टर विल ऑलवेज बी लायबल। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों चीज़ों की बात की थी। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न व्यू के ऊपर। नन ऑफ द अबव प्रिंसिपल्स इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वाइकेरियस लायबिलिटी एंड देयरफॉर जूरिस्ट एंड कोर्ट्स हैव इवॉल्व्ड द न्यू बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर टॉर्ट्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट्स। द न्यू बेसिस इज अनरीजनेबल एंड the new basis is reasonable and meets the problems of the modern developing society. According to the new view, the doctrine of vicarious liability is practically based on the principle of social security. Justice Frederick Pollux had said, I am responsible for the wrongful acts of my servant or agent because he does my act and therefore it is my duty to see that he must do my act keeping in view the security of others. जस्टिस फ्रेडरिक पोलॉक ने भी ये बोला है कि मैं खुद उस गलत काम के लिए जवाबदार हूँ जो कि मेरे सर्वेंट या मेरे एजेंट ने किया है, क्योंकि मैंने ही उनको वो काम करने के लिए बोला था, इसलिए ही वो मेरी ड्यूटी है कि वो काम सही से करें और दूसरों को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुँचाए। ये मॉडर्न व्यू है। फिर आ जाते हैं कि यहाँ पे 5 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं मास्टर सर्वेंट, जैसे कि प्रिंसिपल एंड एजेंट हो गया, बिटवीन पार्टनर्स हो गया, पेरेंट एंड चाइल्ड हो गया, मास्टर सर्वेंट, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ऐसे सब सिनारियोज के अंदर वाइकेरियस लायबिलिटी एप्लीकेबल की जा सकती है। आइए समझते हैं वो कैसे होता है। Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing, okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. Types. सबसे पहला आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जिसको हम मास्टर सर्वेंट भी बोल सकते हैं।
ठीक है. Under the doctrine of vicarious liability, an employer can be held responsible for the tortious acts of his employees. For example, if an employee of a company negligently causes an accident while driving a company vehicle, the company may be held liable for the resulting damages. This is because the employee was acting within the scope of their employment at the time of the accident. यहाँ पे क्या बोला है दैट अगर कोई भी एम्प्लॉई कंपनी का व्हीकल चला रहा है और उसने किसी एक बंदे को ठोकर मार दी, ठीक है, या तो फिर किसी और कार को डैमेज कर दिया, तो इस चीज़ के लिए कंपनी विल बी लायबल बिकॉज ये एक्ट जो था वो ड्यूटी के टाइम हुआ था, कि जब एम्प्लॉई अपनी ड्यूटी कर रहा था कंपनी के व्हीकल से तब ये चीज़ हुई थी. तो इस सिनारियो के अंदर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के लिए जवाबदार होता है, उसके ऊपर लायबिलिटी बनती है under the vicarious liability. Principal agent relationship. Similar to an employer-employee relationship, a principal can be held liable for the tortious acts committed by their agents. An agent is someone who acts on behalf of the principal and is authorized to do so. For example, if an agent of real estate company commits fraud while representing the company in a transaction, the company may be held liable for the agent's actions. यहाँ पे एक रियल एस्टेट एजेंट का एग्जाम्पल दिया है कि जब भी एक रियल एस्टेट एजेंट कोई भी एक डीलिंग के टाइम पे सामने वाली पार्टी से फ्रॉड करता है बाय डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, उस चीज़ की वजह से कंपनी विल बी लायबल, ठीक है, बिकॉज एजेंट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है. पार्टनरशिप रिलेशनशिप. In a partnership, each partner can be held vicariously liable for the tortious acts committed by their fellow partners. This means that if one partner commits tort while acting on behalf of partners, all partners will be held responsible for any resulting damages. For example, किसी भी एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर अकाउंट्स के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कोई एक पार्टनर लेता है, सभी ने उनको ऑथराइज करके रखा है. इन डूइंग दैट, अगर जो पार्टनर ये सब अकाउंट्स मैनेज कर रहा है उससे किसी गलती की वजह से या तो वो जानबूझ के टैक्सेस के अंदर कुछ ना कुछ गलत चीज़ें कर रहा है या तो उससे अनइंटेंशनली कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, बट इन फ्यूचर जब भी ये पर्टिकुलर चीज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने आएगी, जब इनके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे, तब सभी पार्टनर्स को लायबल माना जाएगा, ना कि खाली उस पार्टनर को जो कि अकाउंटिंग का हेड है. ठीक है. Parent and child relationship. In certain circumstances, the parent can be held liable vicariously for the tortious acts committed by their child. For example, if a minor child causes a car accident while driving a family vehicle, the parent who owns the vehicle may be held responsible for any resulting damages. ये एक एग्जाम्पल है. इस चीज़ को हम अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम सभी को पता है जब सोसाइटी में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी ऐसा स्पोर्ट खेलते हैं जिसकी वजह से ऑफनली डैमेजेस होते हैं, शायद किसी कार में डेंट पड़ जाए या किसी का कांच टूट जाए या किसी के सर पे बॉल लग जाती है या कुछ ना कुछ हो जाता है, इन सभी चीज़ों के लिए उनके पेरेंट्स लायबल होंगे. वाई? बिकॉज चाइल्ड इज़ अ माइनर. पेरेंट्स जैसा बोलेंगे वैसा ही वो करेंगे. अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते कि ऐसे ये सब स्पोर्ट्स जो हैं जब लोगों की चहल पहल रहती है तब नहीं खेलने चाहिए, ये सब चीज़ें समझाना एक पेरेंट का काम है. अगर वो लोग ये काम ठीक से नहीं कर पाते, दे विल बी हेल्ड लायबल. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर रिलेशनशिप. In general, an employer is not held vicariously liable for the tortious acts committed by an independent contractor. This is because an independent contractor is not an employee and is generally considered to be operating as a separate business entity. ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है विथ रिलेटेड टू वाइकेरियस लायबिलिटी दैट काफ़ी बार सब लोग बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उस वजह से उन्होंने जो गलत काम किया उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ. ऐसा ज़रूरी नहीं है. सपोजिवली आप एक आर्किटेक्ट हो, आपने एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ MOU साइन किया है दैट मैं जितने भी डिज़ाइंस बनाऊंगा एक पर्टिकुलर घर के लिए आप वो सब चीज़ें कंस्ट्रक्ट करोगे और बिल्ड करोगे. इन डूइंग दैट कॉन्ट्रैक्टर ने काफ़ी जगह पे गलतियां कर दी. अभी सबसे पहले जो भी जिसका भी घर है वो या जिसकी भी प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले आर्किटेक्ट को बोलेगा कि ये आपकी गलती है, बट वहाँ पे आर्किटेक्ट ये कह सकता है कि दिस वॉज एन आउटसोर्सिंग एक्टिविटी. मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ, मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को दे के रखी है.
इस चीज़ की वजह से मैं यहाँ पे लायबल नहीं हूँ। अगर कोई डिज़ाइन में कोई फ्लॉ है जिसमें मैंने ध्यान ना दिया हो तो उस चीज़ के लिए आर्किटेक्ट लायबल है, अदरवाइज़ वो यहाँ पे लायबल नहीं होता है। अभी हम लोग देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ द वाइकेरियस लायबिलिटी। सबसे पहला है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई और प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। कभी भी वाइकेरियस लायबिलिटी को एप्लीकेबल करने के लिए सबसे पहले जिस बंदे ने ये गलत काम किया है उसके एम्प्लॉय या तो फिर प्रिंसिपल के साथ एक रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक पर्टिकुलर बंदा आउटसोर्स्ड था या तो फिर वो बोरोड लेबर था, ठीक है, या तो फिर बोरोड सर्वेंट था कि जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए उसी दिन के लिए तो उसी पर्टिकुलर आवर के लिए वहाँ पे अवेलेबल था, तो वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि वो बंदा डेली उनके लिए काम नहीं करता है। ठीक है, टॉर्टियस एक्ट कमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और एजेंसी। यहाँ पे क्या बोला है कि जो कोई भी एक्ट हुआ है वो एम्प्लॉयमेंट के स्कोप के अंदर ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कोई भी एक कंपनी का ड्राइवर कार चलाते हुए जा रहा है, अभी अगर उससे किसी के साथ एक्सीडेंट होता है या वो किसी को गाड़ी से ठोकर मार देता है एंड ये पर्टिकुलर एक्टिविटी वाइल ही वॉज गोइंग टू ऑफिस विथ सर्टन प्रोडक्ट्स लेट्स से, या तो फिर वो किसी मैनेजर को लेके जा रहा था, अगर तब ये एक्टिविटी होती है तब यहाँ पे कंपनी लायबल है। वेयरएज जब वो पर्टिकुलर ड्राइवर वही सेम कार लेके अपना सब काम ख़त्म करके ड्यूटी आवर्स के बाद अपनी वही व्हीकल को घर तक लेके जाता है, तब वहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है, तब वहाँ पे ड्राइवर सोलली लायबल है, ना कि कंपनी, क्योंकि उसके ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो चुके थे। उसकी ड्यूटी जब वो ऑफिस से सब काम ख़त्म करके निकला, जब या तो वो अपने मैनेजर को ड्रॉप करके निकला या तो फिर वो अपना पूरा का पूरा सामान अनलोड करके निकला, उसकी ड्यूटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती थी, इसलिए वहाँ पे वो सोलली लायबल रहेगा। कनेक्शन बिटवीन द टॉर्टियस एक्ट एंड द एम्प्लॉयमेंट और द एजेंसी। ठीक है, नो पर्सनल मोटिव ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉई और एजेंट, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर जो कोई भी मास्टर है वो ये चीज़ एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी गलत काम हुआ था इट वॉज एन इंटेंशनल, कि यहाँ पे एम्प्लॉय या तो फिर एजेंट उन्होंने खुद से जानबूझ के ये गलत काम किया है, बट ये मास्टर सर्वेंट लायबिलिटी का यूज़ करके हमें फंसाना चाहते हैं। अगर वहाँ पे पर्सनल मोटिव एस्टैब्लिश नहीं होता है तो यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी कंप्लीटली एस्टैब्लिश हो जाएगी विदाउट अ डाउट। उसके बाद आते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे फॉलिंग एंड डिटोर की बात करी है कि जहाँ पे सिंपली बोला है, अगर जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया दैट वो कहीं पे गाड़ी लेके घूमने निकल गया या तो उसका ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो गया, तो उन सभी सिनेरियो के अंदर हम इस चीज़ को वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं मानेंगे। सेकेंड इज एन इंटेंशनल टॉट, कि वो बंदे ने जानबूझ के कुछ गलत काम किया है, तो उस चीज़ को हम वाइकेरियस लायबिलिटी में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। थर्डली, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे ही हमने पहले भी समझा था कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आर एक्सेप्शन, की जहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी हम लोग एप्लीकेबल नहीं कर सकते एज देयर ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी एक्ट्स आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एजेंसी। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय को बोला गया था कि आप एक पर्टिकुलर सिटी में एक पर्टिकुलर एरिया में जाइए और आप मार्केटिंग कीजिए। वो पर्टिकुलर सिटी में तो पहुंच गया, लेकिन जहाँ पे जिस एरिया में उनको डायरेक्ट किया गया था कि आपको इस एरिया में जाके काम करना है, वो उस एरिया की जगह किसी और एरिया में घूम रहे थे। ठीक है, वाइल डूइंग सो उनसे वो उनकी कंपनी का व्हीकल ठुक गया, या तो किसी और ने उनके ऊपर कार ठोक दिया, तो ट्रक से कुछ भी मिसहैप हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उस सिनेरियो के अंदर कंपनी लायबल नहीं है। क्यों? बिकॉज उस बंदे को जहाँ पे जाने के लिए बोला था, एक तो वो उस टाइम पे वहाँ था नहीं, ही वॉज एक्टिंग आउटसाइड द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, इसलिए यहाँ कंपनी लायबल नहीं है। एक्ट्स ऑफ अ बोरोड सर्वेंट, जिसका हमने पहले भी एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई या कोई भी एक सर्वेंट एक पर्टिकुलर दिन के लिए या पर्टिकुलर आवर्स के लिए आपके लिए काम कर रहा है, तब वहाँ पे मास्टर सर्वेंट लायबिलिटी या तो फिर इसको बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं एप्लीकेबल हो सकती, क्योंकि वो डेली आपके लिए काम नहीं करता है। उसके बाद आ जाते हैं केस लॉज के ऊपर। प्रिंसिपल एंड एजेंट,
In Tirlok Singh versus Kailash Bharati, while the owner of the motorcycle was outside the country, his younger brother took the motorcycle without his consent and caused the accident. It was held that the younger is not deemed to be the agent of the owner of the motorcycle and later could not be vicariously liable for the accident. Knowledge or permission and brother could not be vicariously liable for the accident. यहाँ क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर भाई जो थे वो आउट ऑफ द कंट्री थे. इन द मीन टाइम उनके छोटे भाई ने उनकी मोटरसाइकिल ली और कहीं पे क्रैश कर दी, एक्सीडेंट कर दिया, जिसके वजह से कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट का कोई भी ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्स्टली यहाँ पे किसी भी प्रकार का पेपर वर्क नहीं है. सेकेंडली जो ओरिजिनल ओनर थे बाइक के, उनको ना तो नॉलेज थी ना तो उनसे परमिशन ली गई थी कि उनके यंगर ब्रदर उनकी बाइक यूज़ करने वाले हैं. इसीलिए यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं हो सकती. In Hamlin versus Houston Company, one of the two partners of the defendant's firm, acting within the general scope of his authority as a partner, bribed the plaintiff's clerk and induced him to make a breach of contract with his employer. By divulging secrets relating to his employer's business, it was held that both partners of the B&M were liable for this wrongful act, including the breach of contract committed by only one of them. यहाँ पे भी ये बोला गया था कि इवन तो एक ही पार्टनर ने बोला था कि आप ये गलत मतलब प्लेंटिफ की कंपनी के एक एम्प्लॉयर को बोला था कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कीजिए और वो लोग बिजनेस कैसे करते हैं उनके सीक्रेट्स हमें बताइए. इवन तो ये चीज़ एक ही पार्टनर ने की थी, बट दोनों पार्टनर्स को अल्टीमेटली लायबल किया गया था बिकॉज एक का एक्ट के बारे में दूसरे को हमेशा पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को लायबल किया गया था. उसके बाद आते हैं मास्टर सर्वेंट के ऊपर. बख्शी अमित सिंह वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया. द डॉक्ट्रिन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ द रेस्पोंडेंट सुपीरियर, which means that let the principal be liable, and it puts the master in the same position as if he had done the act himself. It also derives the validity from the maxim quae facet per alium facet per se, which means he does an act so another is deemed to in law to do it himself. For the liability of the master to arise, the following two essential to be present. यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर हमें दो एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए थे कि जो कोई भी टॉर्ट हुआ है वो सर्वेंट से होना चाहिए, और ये जो कोई भी सर्वेंट है उसने ये पर्टिकुलर काम उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया होना चाहिए, तो ही वाइकेरियस लायबिलिटी को हम एप्लीकेबल मान सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी का कोई केस नहीं बनता है. ठीक है. By this slide, our lecture is effectively over. I would like to thank you all and thank you very much. Please connect to us with our Instagram page and Telegram channels where we post daily updates about law and certain judgments as well as you will find many articles regarding many subjects and topics on our website. Furthermore, you will also find MCQs for those same related topics. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.